Hello everyone, welcome back to my channel Harshida Education. Today we are going to start chapter 13 Fun with Magnets from class 6th Science NCERT syllabus semester 2. Hello students, let's continue our chapter 13 Fun with Magnets. Paheli and Bhojo went to a place where a lot of waste material was piled into huge heaps. Something exciting was happening. A crane was moving towards the heap of junk. The long hand of the crane lowered a block over her heap. It then began to move. Guess what? Many pieces of iron junk were sticking to the block as it moved away, which you can see in figure 13.1. सो पहेली और भोजो ऐसी जगह पर गए थे जहाँ पर बहुत सारा जो वेस्ट मटेरियल है उसका ढेर लगा हुआ था। यहाँ पर कुछ एग्जाइटिंग चीज़ हो रही थी। एक क्रेन इस कबाड़ के ढेर की तरफ जा रही थी और क्रेन के बड़े से हाथ ने एक बड़े से ब्लॉक को इस बड़े से ढेर पर गिरा दिया था। इसके बाद उसने चलना शुरू किया तो लोहे के बहुत सारे टुकड़े इस ब्लॉक से चिपके हुए थे। जैसे जैसे इसको मूव किया गया, इसके साथ दूसरी चीज़ें भी मूव होने लगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिगर जो 13.1 है उसमें आपको दिखाया है कि जो पिकिंग अप पीसेस ऑफ आयरन फ्रॉम वेस्ट। दे हैड जस्ट रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक ऑफ मैग्नेट्स एंड न्यू इमीडिएटली दैट देयर मस्ट बी अ मैग्नेट अटैच्ड टू द एंड ऑफ द क्रेन दैट वॉज पिकिंग अप आयरन फ्रॉम द जंक यार्ड। तो उन्होंने एक मैग्नेट पर एक बहुत ही दिलचस्प किताब पढ़ी थी और इसीलिए उन्हें तुरंत ही पता लगा कि क्रेन के एंड से एक मैग्नेट जुड़ा होना चाहिए जो ये सारी जो जंक चीज़ें हैं जो इससे लोहा उठा रहे हैं। So you might have seen magnets and have been enjoyed playing with them. Have you seen stickers that remain attached to iron surfaces like almirahs or the doors of refrigerators? In some pin holders, the pins seem to be sticking to the holder. In some pencil boxes, the lid fits tightly when we close it even without a locking arrangement. Such stickers, pin holders and pencil boxes have magnets fitted inside, which you can see in figure 13.2. If you have any one of these items, try to locate the magnets hidden in this. तो आपने भी मैग्नेट को देखा होगा और उनके साथ खेलने में आपको भी मज़ा आपने लिया होगा। तो क्या आपने ऐसे स्टिकर देखे हैं या फिर जो कि लोहे की अलमारी में जो सरफेस हैं उससे जुड़े रहते हैं, या फिर इसके अलावा आपने ऐसे फ्रिज या ऐसे दरवाजे देखे हैं जिस पर स्टिकर लगाए जाते हैं। तो जो कुछ पिन होल्डर्स में जो पिन है वो होल्डर से चिपकी हुई होती है, आपने देखा होगा। वो जो ऑल पिन होती है वो एक बॉक्स एक डब्बे के अंदर होती है और उसके अंदर जो पिन है वो उस होल्डर्स में चिपकी हुई होती है। इवन इसके अलावा जो कुछ पेंसिल बॉक्सेस में जो ढक्कन है वो एकदम टाइटली फिट होता है। तो जब हम इसे बंद करते हैं और ये बिना लॉकिंग अरेंजमेंट की ये जो सिस्टम होती है ये होती है। तो ऐसे स्टिकर्स, पेन होल्डर और पेंसिल के बॉक्स में क्या होता है, मैग्नेट फिट किए जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे 13.2 जो आपको फिगर दिखाया गया है उसमें आप देख सकते हैं। तो यदि आपके पास इनमें से कोई भी एक आइटम है तो इनमें छिपे मैग्नेट के मतलब जो छिपे मैग्नेट है उसका आप पता लगाने की कोशिश पूरी करें। हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड? It is said that there was a shepherd named Magnus who lived in ancient Greece. He used to take his herd of sheep and goats to the nearby mountains for grazing. He would take a stick with him to control his herd. The stick had a small piece of iron attached at one end. One day he was surprised to find that he had to pull hard to free his stick from a rock on the mountain side, which you can see here in figure 13.3. So it seemed as if the stick was being attracted by the rock. The rock was a natural magnet and it attracted the iron tip of the shepherd's stick. It is said that this is how natural magnets was discovered. Such rocks were given the name magnetite, perhaps after the name of that shepherd. Magnetite contains iron. Some people believe that magnetite was first discovered at a place called Magnesia. The substance having the property of attracting iron are now known as magnets. This is how the story goes. तो कहा जाता है कि जो मैग्नस नाम का एक चरवाहा था जो कि प्राचीन ग्रीस में रहता था, वो अपनी भेड़ और बकरियों को चराने के लिए
इस झुंड को जो पास के जो पहाड़ थे वहाँ पर ले जाया करता था। तो वो अपने झुंड को कंट्रोल करने के लिए उसके साथ एक छड़ी भी ले जाता था। तो उस छड़ी के एक सिरे पर लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा लगा हुआ था। एक दिन उन्हें मतलब उस जो मैग्नस है उसे ये जानकर काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि उसे अपनी इस छड़ी को चट्टान से फ्री करने के लिए, यानी कि जो ज़मीन से वो टिका के जिस तरह से चलते हैं, तो एक चट्टान में जब उसकी जब छड़ी लग गई तो उसको फ्री करने में उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। तो जो कि आप यहाँ पे ये फिगर जो 13.3 है उसमें आपको दिखाया गया है, इस तरह से उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। तो ऐसा लग रहा था कि मानो कि जो छड़ी है वो चट्टान से एकदम अट्रैक्ट हो रही थी, खिंच रही थी। तो चट्टान एक नेचुरल मैग्नेट था और इसने चरवाहे की लोहे की जो नोक थी उसको अट्रैक्ट किया था। तो कहा जाता है कि इस तरह से जो नेचुरल मैग्नेट है उसकी खोज हुई थी और इसी तरह ऐसी चट्टानों को मैग्नेटाइट नाम दिया गया था। तो शायद उस चरवाहे के नाम के ऊपर उसका नाम रखा गया है। तो मैग्नेटाइट में क्या होता है, आयन होता है। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि जो मैग्नेटाइट है उसको पहली बार मैग्नीशिया नामक स्थान पर खोजा गया था। लोहे को अट्रैक्ट करने का जो गुण रखने वाले पदार्थों को अब मैग्नेट के रूप में हम जानते हैं। आप बहुत ही आराम से जानते हैं कि अगर आप स्टेशनरी की दुकान में जाओगे तो आपको तरह तरह के अलग अलग शेप के मैग्नेट्स मिलेंगे। तो ये जो कहानी है, तो इस तरह से ये जो कहानी है ये आगे बढ़ रही है। Now in any case, people now have discovered that certain rocks have the property of attracting pieces of iron. They also found that small pieces of these rocks have some special properties. They named these naturally occurring materials magnets. Later on, the process of making magnets from pieces of iron was discovered. These are known as artificial magnets. Nowadays, artificial magnets are produced in different shapes. For example, bar magnet, horseshoe magnet, cylindrical or a ball ended magnet, which you can see in figure 13.4 shows a few such magnets. तो किसी भी केस में लोगों को अब ये पता है कि कुछ जो पत्थर हैं, ये जो चट्टान है, उसमें लोहे के टुकड़े जो हैं अट्रैक्ट करने का गुण होती है, वो क्वालिटी होती है। तो उन्होंने ये भी पाया कि इन चट्टानों के छोटे टुकड़ों में कुछ विशेष मतलब कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं। तो उन्होंने इन जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थों को मैग्नेट नाम दे दिया। बाद में लोहे के टुकड़ों से मैग्नेट बनाने की इस प्रोसेस का पता उनको चला, तो इन्हें कहा जाता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। इन्हें आर्टिफिशियल मैग्नेट के रूप में जाना जाता है। तो आजकल जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है वो अलग अलग शेप्स में तैयार किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप यहाँ पे 13.4 अगर आप फिगर देखते हैं तो इसमें आपको बार मैग्नेट दिखाया गया है, हॉर्स शू मैग्नेट यानी कि जो एक घोड़ा होता है, तो जो घोड़े की नाल हम बोलते हैं, तो उसके शेप का यहाँ पे मैग्नेट दिखाया गया है। सिलेंड्रिकल मैग्नेट आपको दिखाया गया है, बॉल एंडेड मैग्नेट आपको दिखाया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे अलग अलग शेप्स के मैग्नेट हैं। नाउ बेस्ड ऑन दैट हियर वन एक्टिविटी इज देयर, एक्टिविटी 1। नाउ टेक अ प्लास्टिक और अ पेपर कप, fix it on a stand with the help of a clamp as shown in figure 13.5. Now place a magnet inside the cup and cover it with a paper so that the magnet is not visible. Attach a thread to a clip made of iron. Now fix the other end of the thread at the base of the stand. Mind you, the trick involved here is to keep the length of the thread sufficiently short. Bring the clip near the base of the cup. The clip is raised in air without support like a kite. तो एक्टिविटी 1 में जो है इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक प्लास्टिक या पेपर का कप लेना है। ये क्लैंप की मदद से स्टैंड पर फिक्स करें इसे, जैसा कि आप यहाँ पे 13.5 फिगर में देख सकते हैं। तो कप के अंदर एक आपको क्या करना है, मैग्नेट रखना है और इसे एक पेपर से ढक देना है ताकि जो मैग्नेट है वो ना दिखाई दे। फिर लोहे से बने क्लिप से एक धागे को आपको अटैच करना है। फिर जो थ्रेड है उसका जो दूसरा एंड है उसको स्टैंड पर आपको फिक्स करना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि थ्रेड की जो लंबाई है वो छोटी ही रखें। अब क्लिप को कप के बेस तक लाना है और क्लिप बिना किसी, आप देखेंगे कि जो बिना किसी सपोर्ट के हवा में एक पतंग के जैसे वो उठ जाएगी। तो यहाँ जैसे आप 13.5 फिगर में देख सकते हैं। सो टिल हियर, इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू द चैप्टर। टिल देन बाय बाय।